Nutrition is a process by means of which living organisms absorb the raw material, utilize them, and use them in growth, maintenance, and various other metabolic functions of their body. And nutrition, after nutrition, we should know what are nutrients. And nutrients are the chemical compounds, they may be organic or inorganic. Various organic compounds that we all know, carbohydrates, fats, proteins, all the organic components, and they are all formed from the various common or structural elements, carbon, hydrogen, oxygen, etc. And various another substances, another elements, they are also required for the enzymatic processes as an activator of enzymes, or some metal ions are also needed as a catalyst for the processes or for the functioning of various metabolic reactions that are happening in the living organisms and even in plants also. So we are starting with the new chapter, what is a mineral nutrition. Mineral nutrition क्या होता है specifically in plants. Plants में mineral nutrition के बारे में हम पढ़ेंगे. तो what are various other topics that we are going to study regarding in this chapter. First of all, if we talk about the minerals, what are various criteria of essentiality of minerals. In this criteria and identification are two main points कि which elements is needed for the प्लांट फॉर विच पर्पस दैट वी शुड नो, वो हमें पता चलना चाहिए. और इसके अलावा व्हाट आर वेरियस अदर क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन से दिस पर्टिकुलर मिनरल इज़ नेसेसरी फॉर द प्लांट. एक पर्टिकुलर मिनरल और स्पेसिफिक मिनरल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए नेसेसरी है. मोर ओवर इफ ए मिनरल इज एब्सेंट देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और व्हाट आर वेरियस डेफिशिएंसी सिम्टम्स, और इफ ए पर्टिकुलर मिनरल इज इन एक्सेस amount, then what happens, whether it is causing toxicity or some other things that definitely we are going to study. And some other topics are nitrogen fixation, and besides that what are various microorganisms involved in nitrogen fixation, what are various minerals involved in nitrogen fixation. So all these are parts of this process. So we are starting right now. So first of all we should know some of the minerals which are forming the framework, structural part of the plants में there are some chemical compounds जो plants की structure के लिए important है, जैसे कि proteins हैं, fats हैं, carbohydrates. They are required by the plants, and plants are also making them by autotrophic mode of nutrition. Only plants are autotrophs, and they are making carbohydrates and some other chemical compounds which are used by the plants, and of course whole of the universe is also dependent on them. Besides that, some other minerals which are needed by plants for various other processes are inorganic minerals. And this chapter is basically we are stressing on the inorganic minerals and what are their roles and what are various functions performed by these minerals. So we are starting with right now. So first of all, there were scientists who proved the role of the minerals, in which we should mention Helmont was a scientist. In 1668 he told, what he concluded, that if a seedling or if a very small plant is grown inside the soil, and after 5 years when the small plant is grown or converted into the tree, what happens to the soil? Soil will lose its 56.7 gram. अब इसका जितना ऑफ इट्स मास आई कैन से वी कैन से कि सॉइल में जब भी कोई प्लांट लगाते हैं तो व्हाट हैपन्स, सॉइल लॉस्ट अबाउट सम ऑफ इट्स स्पेसिफिक मास, एंड वेयर इट हैज गॉन डेफिनेटली इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स में जाता है. तो दिस वाज प्रूव्ड बाय द हेलमॉन्ट ने कहा कि सॉइल लॉस्ट इस मास, और उसने
5 years के बाद चेक किया, आफ्टर 5 years when he grew some seedlings क्या होता है, small plants when they are grown, when seeds are grown inside the soil and they are establishing some, कुछ height attain कर लेते हैं ना थोड़ी सी, and these are called the small plants. तो these plantlets whenever they are sown inside the soil directly, कई बार क्या होता है seedlings को ही directly soil में grow करते हैं for cultural experiment, for various other lab research work के लिए. तो when these seedlings were grown and after 5 years what he saw that the soil lost its mass, कितना 56.7 gram, and where it has gone, where it had gone, it definitely in growth and development of the plants, जहाँ plants में ये consume हो गया and the plant was converted into a tree, और वो किस में convert हो गया, tree में. तो 5 years में mass इसका lost हुआ soil का and gone to the seedling, and seedling was converted into tree. Seedling किस में convert होगी, tree. तो this was basic idea that was given by the Van Helmont. वॉन हॉलमंड ने सबसे पहले बेसिक आइडिया दिया था कि देयर आर मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल, कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो सॉइल में प्लांट्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, और जब प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं तो सॉइल में मास में क्वांटिटी में देयर इज सम डेफिशिएंसी, कुछ लैकिंग आ जाती है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट देयर वाज ए साइंटिस्ट लाइबिग ने प्रोड्यूस किया लॉ ऑफ मिनिमम. ये भी एक लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमम. इट इज ऑल्सो प्रूविंग सम अनदर थिंग of the mineral elements. In it, what he is saying, in 1840, Liebig ने कहा कि the productivity of a soil or fertility of a soil, the productivity of a soil depends on the mineral which is present in, on the mineral present in, depends on the mineral present in less amount. सॉइल की फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है, जो मिनरल लेस अमाउंट में है. जैसे कि अब हमें मालूम है ऑल दी मिनरल्स दे आर नीडेड इन सम डेफिनेट अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट की ज़रूरत होती है. हर मिनरल का अपना स्पेसिफिक अमाउंट है. सम मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एंड सम आर इन स्मॉल अमाउंट. तो प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, उस मिनरल के ऊपर जिसकी सबसे कम सॉइल में वो present हो. तो which is called the law of minimum by the Liebig. There was a scientist Julius Van-Sachs, बहुत कॉमन नाम है इसका. Julius Van-Sachs ने एलिमेंट्स कवर किए थे, टोटल एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. तो Julius Van-Sachs ने कहा कि प्लांट्स कैन बी ग्रोन plants can be grown in a nutrient solution without the soil, without the use of soil. जूलियस वेनसेक्स ने इसको 1860 में कहा कि कुछ प्लांट्स, या वी कैन से प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मीन्स इन विच वेरियस मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट अमाउंट. तो उस सॉल्यूशन में अगर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो दे कैन बी ग्रोन, वो अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेते हैं. तो इसको नाम दिया हाइड्रोपोनिक्स जिरिक ने. देयर वाज ए नेक्स्ट साइंटिस्ट जिरिक. he called them, what he called them, he called them hydroponics to this soilless culture medium in which plants are grown. So after that various research work were done on this hydroponics किए गए. तो एक्चुअल में हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, एक some vessel like structure, वो vessel may be of plastic, may be of metal, or may be of some another container in which nutrient solution is added. ये nutrient solution है, इसको इसमें डाला गया उस vessel के अंदर,
एंड टोटली स्टरलाइज कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि बुक में हमारे एनसीईआरटी में दिस फिगर इज बीइंग मेड, जैसे ये रेजर्वायर है और वी कैन से दिस इज ए फनल विच इज सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। एक न्यूट्रिएंट और ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दे आर ऑल प्रेजेंट इन प्रॉपर एंड बैलेंस्ड अमाउंट। तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया गया, ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन ए बैलेंस्ड अमाउंट, ठीक है, एक बैलेंस्ड अमाउंट में डाले गए, ठीक है, क्लियर। एंड व्हेन some another medium another some air supplying medium or oxygen providing some tubular structure, oxygen providing tube was also inserted and it was mixed thoroughly with the it was allowed to mix thoroughly with the in the nutrient solution, and the plants were grown and their roots were suspended into the nutrient solution. Roots को किसमें nutrient solution में suspend किया गया so that they can absorb whatever minerals are required by the plants, and whole of the structure was totally sterilized with the help of cotton plugs. जहाँ जहाँ पे भी opening के आसार नजर आ रहे हैं ना, जहाँ से plugs इनको इंसर्ट किया गया, यानी कि ऊपर का तो वेसल का कवर है ना, wherever the chances of air or some other contaminants to come, all they were plugged with the cotton. कॉटन के प्लग के साथ उनको अच्छी तरह से सील कर दिया गया so that another कोई भी contaminant or pollutant में cannot enter into this hydroponics. तो ये इस तरह से एक hydroponics was developed and what was the need of this hydroponics to study about the, इसलिए मेन किया गया था identification of elements. What were the main criteria कि what are various elements that are required by the plants, ठीक है। and second was essential, which elements are essential and which are not essential. तो इसको these were two criteria that were considered, and the hydroponics they are successively done for these two purposes. Moreover, plants they are grown for these days, जैसे कि some of the important vegetables हैं जैसे seedless cucumber, tomatoes and lettuce, they are being produced with the help of hydroponics these days. तो main vegetables कौन कौन सी आज की डेट में प्रोड्यूस की जा रही है? सीडलेस कुकुम्बर, lettuce that are specifically mentioned in our NCERT that we have to learn them, and tomatoes. Moreover, various other vegetables or mean to say horticultural practices. Horticultural में fruits से related maximum fruits they can be grown. They are being growing these days. Olericulture concerned with vegetables or any other aspect of agriculture, जैसे कि floriculture जिसमें production of flowers, useful flowers, all they are being done with the help of hydroponics these days. तो main branches concerned with these are horticulture branches, in which we are concerning with culturing of fruits. Fruits are being there. Olericulture, in which culturing of vegetables. These days vegetables भी बहुत सारी hydroponics की help से बनाई produce की जा रही हैं. And second, third we can say floriculture, which is concerned with culturing of flowers. So these are successful एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें हाइड्रोपोनिक्स को यूज़ किया जा रहा है. बट मेन क्राइटेरिया क्या है हाइड्रोपोनिक्स का कि व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स इज नेसेसरी बाय द प्लांट्स, कि विच आर द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स. तो उसके लिए व्हाट इज़ ए बेसिक प्रोसीजर दैट इज़ डन बाय दिस हाइड्रोपोनिक्स. तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो क्या कैसे करते हैं इसको. मेनली तो वी टेक एन एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल्ड वी कैन से कंट्रोल्ड कंडीशंस में कंट्रोल्ड
और जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोपोनिक है उसको यूज करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इस हाइड्रोपोनिक्स में ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। एक तो न्यूट्रिएंट मीडियम ऐसा ले लिया जिसमें सब न्यूट्रिएंट मीडियम मिनरल्स डाल दिए जो नेसेसरी हैं ग्रोथ के लिए, तो उसको हमने एक्सपेरिमेंटल के लिए रख लिया, एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोपोनिक। एंड सेकेंड कौन से लिए हमने, जिस मिनरल्स की हमें ज़रूरत है ना, जैसे कि हम देखना चाहते हैं कैल्शियम का क्या है रोल प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, या मैग्नीशियम का क्या है, पोटेशियम या दूसरे मिनरल्स दैट आर नीडेड बाय द प्लांट्स, तो उनको हम डेफिशिएंट कर देते हैं, ठीक है, और उनको हम कह देते हैं इंडिकेटर प्लांट्स। इंडिकेटर प्लांट्स कौन सी, तो कंट्रोल्ड और एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स है ना, जो जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स मीडियम डाले गए हैं। तो इंडिकेटर प्लांट स्पीसीज में तो व्हाट वी सी, जैसे कि कोई भी प्लांट हाइड्रोपोनिक हमने लिया, सपोज इसमें हमने कोई प्लांट ग्रो किया, ठीक है, और इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इफ यू वांट टू सी द ग्रोथ ऑफ इट वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ कैल्शियम, तो इसमें हमने कैल्शियम माइनस कर दिया, क्लियर। और इसी तरह से अगर हमने मैग्नीशियम का रोल देखना है तो मैग्नीशियम माइनस कर देंगे। तो हमने बहुत सारे कंट्रोल इंडिकेटर प्लांट्स ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है, जिनका भी हमने स्पेसिफिक रोल चेक करना है। तो आफ्टर सम टाइम दिस प्लांट कंट्रोल्ड और एक्सपेरिमेंट वाला ग्रो करेगा प्रॉपर, तो नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल बी देयर बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्रॉपर अमाउंट और इन बैलेंस्ड अमाउंट। लेकिन जो इंडिकेटर प्लांट्स होंगे ना, सपोज इफ ए पर्टिकुलर वी मेक इट डेफिशिएंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हमने इसमें माइनस किया है, तो कैल्शियम से रिलेटेड वॉट एवर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर कमी से जो भी प्लांट्स में सिम्टम्स नजर आएंगे ना, तो उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर कर देंगे, तो ऑन दैट बेसिस वी कैन डिराइव दैट रोल ऑफ द कैल्शियम एंड व्हाट विल हैपन व्हेन दिस कैल्शियम इज एब्सेंट। इस तरह से इन दिस मैनर वी कैन चेक the role of various other elements like this. So one is to be making as a standard or a controlled experimental culture in which all the nutrients are balanced, and another are indicator. They are indicating that a particular mineral is deficient, एक particular mineral deficient है जिसके कारण symptoms नजर indicate हो रहे हैं, symptoms नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो these are indicator showing the symptoms of deficient element, clear। तो in this is a basic procedure that scientists they are doing these days। अब हम आते हैं what are various kinds of the hydroponics। जैसे कि मैंने इसमें एक टैंक सिस्टम बनाया हुआ है, टैंक सिस्टम में what we see, these are concrete or metal tank and in it nutrient they are supplied with the help of some reservoir। nutrient medium भी है इसमें and air is also provided। तो first of all in tank system, a tank which is made up of metal or concrete, सबसे पहले ज़िरीक ने इसको प्रोड्यूस किया था 1937 में, जिसने हाइड्रोपोनिक नेम दिया था, एंड इन विच न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड रूट्स आर सस्पेंडेड इनटू द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड एयर इज बबल्ड आल्सो थ्रू सम system or with tubular system so that proper oxygenation should be there and there will be normal growth and development because all the nutrient solution are present। And second was developed by Cooper। There was a scientist whose name was Cooper, he did the experiment in 1979। all these hydroponics are of recent research, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, सब recent researches हैं। इसने क्या किया था, ट्यूबुलर सिस्टम, फाइन ट्यूब को यूज किया एंड दिस ट्यूब वाज जस्ट लाइक इन प्रेजेंट इन एन इंक्लाइन मैनर। आई फॉरगॉट टू ड्रॉ द डायग्राम, जस्ट आई एम ड्राइंग इट राइट नाउ। एक ट्यूबुलर सिस्टम डेवलप किया और उसी के साथ एक रेजरवायर था, वी कैन से जैसे कि सप्लाई न्यूट्रिएंट मीडियम की सप्लाई करने के लिए एक रेजरवायर को अटैच कर दिया गया, ठीक है। एंड
व्हाट इट वाज डूइंग, जैसे इसमें एक पंप की हेल्प से ये न्यूट्रिएंट मीडियम है ना, इसके अंदर डाला गया. वन साइड ड्रॉ इट अगेन. When the reservoir was used, तो एक source or what we can say one container which is having the nutrient medium, और उसमें ना पंप की हेल्प से, जैसे कि एक पंप और मोटर लगा दो ना, उसकी हेल्प से एक पूरा का पूरा एक ट्यूबुलर सिस्टम, एक फाइन जो कि पूरा का पूरा सर्कुलेट करती है न्यूट्रिएंट मीडियम को. एक ट्यूब थी दैट वाज रनिंग साइमल्टेनियसली टू द थिन ट्यूबुलर सिस्टम. ट्यूबुलर सिस्टम से ये रन कर रही थी. और यहीं पे व्हाट वी हैव ग्रोन, ही ग्रो दी प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स दे वर ग्रोन. ठीक है, कॉपर ने इसको ट्यूबुलर सिस्टम को यूज किया एंड द न्यूट्रिएंट्स दे वर यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जैसे कि न्यूट्रिएंट यहाँ से आएंगे ना पंप के हेल्प से ऊपर उठ के, एंड देयर इज एन इंक्लाइंट एंड दे विल रीसर्कुलेट, ट्यूब के अंदर फिर से रीसर्कुलेट होंगे और कंप्लीटली दे विल बी बाथिंग दिस, पूरा का पूरा ये जो प्लांट्स है ना उनकी रूट्स को दे आर कंप्लीटली एम्बेडेड इनटू दिस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर पूरे के पूरे डिप होंगे रूट्स प्लांट्स के. ठीक है, तो डिफरेंट प्लांट्स एंड दे वर टेकन फॉर चेकिंग. बारी बारी से इनको अगर हम प्लांट्स को लिया गया टू वेदर दे आर ग्रोइंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भी सप्लाई किया गया रेगुलरली. तो एक उसके लिए थिन ट्यूबुलर सिस्टम वाज डेवलप्ड. ठीक है, एंड द प्लांट्स, जैसे कि एक प्लांट को निकाल कर देखा और वेदर इज शोइंग प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पूरी उसकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो रही है. तो सब प्लांट्स को जिसमें भी हो रही है अच्छे से इनको चेक किया गया. तो इन दिस मैनर वी कैन से द ट्यूबुलर सिस्टम वाज डेवलप्ड. और व्हाट वाज, इट वाज अरेंज्ड इन इनक्लाइन मैनर, थोड़ा सा नीचे, ताकि जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ट्यूब के द्वारा जा रहा है ना, इट शुड कम ऑटोमेटिकली बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फिर से उसमें आ जाए. अगेन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट इज डन एंड ऑल द रूट्स दे आर डिप्ड इनटू दिस. पूरी की पूरी रूट्स क्या है, उनके न्यूट्रिएंट के अंदर डिप कर गई हैं, की गई हैं, एंड दे शोइंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और सब प्लांट्स को निकाल कर बारी बारी देखते हैं कि विच इज शोइंग प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो इस तरह से एक ट्यूबुलर सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय द, किसने किया था, कॉपर ने. एंड नेक्स्ट देयर वाज ए साइंटिस्ट वेदर दे केम इन 1992. वेदर एंड जोबल वर द साइंटिस्ट. वेदर एंड जोबल, एंड दीज आर रिसेंट, आजकल इसको करते हैं एंड दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स. प्लांट्स इसमें क्या कर रहे हैं, मेटेलिक के अंदर, कंटेनर के अंदर सस्पेंडेड इनटू द एयर, इसको हम कहते हैं एयरोपोनिक्स, सस्पेंडेड इन एयर. एंड मिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज सप्लाइड. एक ना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन की जो मिस्ट, यानी कि इसको हम कह सकते हैं स्प्रे की फॉर्म में, एक नोजल से यहाँ पे नीचे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को मिस्ट की फॉर्म में सप्लाई किया गया. एंड दिस मिस्ट और इस स्प्रे को रूट्स व्हेन दे आर एब्जॉर्बिंग, यानी कि पूरा एयर मीडियम है, लिक्विड मीडियम नहीं है उसमें. और वो मिस्ट क्या है, एक तरह की सेचुरेटेड विद, जिसमें ह्यूमिड वेपर्स हैं, वी कैन से, ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कैच कर लेगा इस एयर में, रूट्स दे विल कैच, एब्जॉर्ब दिस मिस्ट. उस मिस्ट को विच इज हैविंग द न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एलिमेंट्स है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड दे विल शो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड इट इज ए लेटेस्ट और रिसेंट है. एंड बहुत सारे, जैसे कि हम कह सकते हैं सिट्रस प्लांट्स और ऑलिव प्लांट्स, दे आर सक्सेसिवली ग्रोन एंड दे आर गिविंग बेटर रिजल्ट दीज डेज. बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं. और ऑल दीज आर रिसर्चेज दे आर गोइंग ऑन इन आवर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस. बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स को सक्सेसिवली ग्रो करते हैं. अब हम आते हैं लास्टली हाइड्रोपोनिक्स में सिग्निफिकेंस क्या है. तो सिग्निफिकेंस में वी शुड नो कि एक तो हमें पता चल जाता है कि विच एलिमेंट इज पर्टिकुलरली नीडेड. ऑल द न्यूट्रिएंट मीडियम्स सॉल्यूशन जितने भी चाहिए ना प्लांट्स को, दे आर डायरेक्टली सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. तो ऑल द nutrients are supplied
जिसकी भी रिक्वायरमेंट्स है आर सप्लाइड इन प्रॉपर अमाउंट. और सेकेंड, डेफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट वी कैन नो. ये तो मैंने अभी बताया ही आपको. डेफिशिएंसी ऑफ ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कैन बी नोन. ठीक है, ये भी पता लग जाती है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी क्या है. थर्ड, इफ नो चांसेस ऑफ बैक्टीरिया और फंगस टू एंटर, क्योंकि ये बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस जो भी हैं, क्योंकि टोटली बिकॉज ऑल दिस इज स्टाइल इज ऑकरिंग अंडर द स्टरलाइज्ड कंडीशन, तो कोई भी डिजीजेस के चांसेस नहीं है. नो वीड्स टू कम, नो वीड्स टू कम, एंड दे आर ऑफ कोर्स गिविंग बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली भी. इससे ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं. और दिस इज रिगार्डिंग दी एंड वेल एयरेटेड कंडीशंस आर आल्सो यूज्ड. प्रॉपर ऑक्सीजन भी हाइड्रोपोनिक के हेल्प से हम दे सकते हैं. तो दीज आर दी सिग्निफिकेंस दैट आर बीइंग यूज्ड बाय दी that are being given by the hydroponics. Clear? So this is regarding hydroponics. Now we come to the next topic. What are various criteria of essentiality of element?